We already know that human rights are those necessary and essential conditions which are basically required for the human existence and for the prevailing of good and healthy circumstances where human beings can live and secure their lives, their properties, their working relationships, and other things. But it is very important also to understand and to know about the originations, about the sources from where these rights have been articulated, or these rights have been formulated. So these theories are basically different sources, or these theories are the opinions about the origination of the human rights. Through every single theory we try to understand that what is the basic source of the human rights, from where the idea, the concept of rights came. And we also try to trace, and we also try to find out the building blocks, or the opening opinions of the scholars like philosophers, sociologists, and intellectuals who have been evaluating rights as a source of different type of parameters. So we have different explanations. We have so many books written on human rights, and in every book different type of opinions have been formulated and disseminated by the scholars, by the philosophers, and by the sociologists about the human rights. But we are basically focusing on the following five type of theories which have been given by the different authors or different intellectuals. So the first theory about the, or the first source of the human right is basically the theory of natural rights. The second one is the theory of legal rights, or the legal theory of rights. Third one is the historical theory of rights. Fourth one is idealistic theory of rights, and the fifth one is social welfare theory of rights. This lecture is basically coordinated with the material which has been given to you in the form of book, the book which is recommended in the class, titled Human Rights by Asif Malik. So the chapter is basically taken from that book. You have the written material with you, all the students, but I am just trying to explain, and I am just trying to demonstrate what is being written into those lectures, into those chapters. So let's start with the first theory, the theory of natural rights. The word nature is very significant in this theory, because the scholars and the intellectuals in the beginning of human development, or the human communities, they believe that the source of human rights are basically the nature, or the natural laws. This doctrine is very simple in explanation, but when we try to understand it, it becomes very complex, because it is a philosophical doctrine. I'm trying to demonstrate to you that nature and the concept of nature is not so much simple as we believe. We think that everything which is created by God, which is created by Allah, is nature, but different scholars and different intellectuals belonging to different backgrounds have different opinions. Some believe that human beings are nature themselves. Some believe that the creations and the objects in the universe, they basically consist or comprise nature. So the concept of nature is very much important to understand, because in this theory, the theory of natural rights, nature is considered as the source of rights. And nature basically is about the existence and about the living conditions of the human beings. सिंपली स्पीकिंग, अगर आप सोचिए थोड़ा सा, कि इंसान को जो पैदा किया गया, इंसान की जो तख्लीक की गई, उसके बाद उसको अकॉर्डिंग टू इस्लामिक बिलीफ एंड अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन बिलीफ, जब उसको इस ज़मीन पर, इस अर्थ ग्लोब पर उतारा गया, तो उसकी लिविंग के लिए डिफरेंट कंडीशंस भी अल्लाह ताला ने पैदा की। और उन कंडीशंस में जो सबसे पहली अवेलेबिलिटी थी, वो थी उसकी लाइफ की प्रिजर्वेंस,
उसकी लाइफ की सिक्योरिटी, उसकी लाइफ की लिबर्टी। सो नेचर की जब हम बात करते हैं विद द स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो नेचर बेसिकली एक सोर्स बन जाती है विच प्रोवाइड्स ह्यूमन बीइंग्स विद द अवेलेबिलिटीज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज लाइक फूड, like weather conditions and the living situations. So ये सारी जो चीज़ें हैं बेसिकली जो हमें हमारी लाइफ को सिक्योर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, वो बेसिकली हमारी सोसाइटी में या हमारी नेचर जो इन्वायरमेंट हमारे इर्द गिर्द फैली हुई है उसी के अंदर मौजूद होती है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ जाएं, ये फ़लसफ़ा समझ जाएं कि नेचर बेसिकली है क्या, नेचर हर वो प्रोविडेंस है, हर वो प्रोविज़न है जो गॉड ने, जो अल्लाह ने इंसान को इस ज़मीन पर अपनी लाइफ की प्रिजर्वेंस के लिए, सस्टेनेंस के लिए प्रोवाइड की है, तो फिर राइट्स भी बेसिकली उसी नेचर से डिराइव किए गए हैं। सो देयर आर द प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। जो हमारे ह्यूमन राइट्स हैं वो हमारी नेचर ही की प्रोडक्ट हैं, हमारी नेचर से ही डिराइव किए गए हैं। और इसका बेसिक रूल, बेसिक लॉ जो आप स्टूडेंट्स ने समझना है वो ये है कि ऑल मैन, ऑल ह्यूमन बींग्स आर बोर्न विद सर्टन राइट्स एंड दीज राइट्स आर इनएलिएनेबल. All the human beings have the right to live and to prosper and to survive and to secure their life, and this right is universal and this right cannot be taken up from any human being. So historically speaking, on the page number 18 of your books, the second paragraph, it says that the concept of natural rights originated in ancient Rome. Roman Empire and the Roman rule was basically the most primitive rule and most primitive civilization in the world even before the Greek times. If we calculate the history, it's something like 2500 years ago that human empire was established. So that empire was basically a vast empire. Half of the world was the part of that Roman empire. So initially the concept of rights was basically originated and established into Roman empire and Roman rule. The people of that empire believed that all the human beings are equal. They have certain basic rights which are provided by the nature, and that the Romans called the natural law. अब वही बात जो हमने अभी रिपीट की है कि ऑल ह्यूमन बींग्स आर बोर्न विद सर्टन राइट्स. हर इंसान जब पैदा हुआ है या पैदा किया गया है उसको कुछ राइट्स और कुछ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी नेचर की तरफ से डिफ़ाइन कर दी गई हैं. वो अंडरस्टूड हैं, वो समझने में इसलिए आसान है क्योंकि जब हम मानते हैं कि हर इंसान को लिबरेट पैदा किया गया है, हर इंसान को इंडिपेंडेंस के साथ पैदा किया गया है, तो फिर उसकी लाइफ का कंट्रोल भी हर इंसान के हाथ में दिया गया है. ये लॉ जो था ये नेचुरल लॉ कंसीडर होता है. अब नेचुरल लॉ में ख़ास तौर पर जो हम सोर्स मान रहे हैं राइट्स का, वो मान रहे हैं नेचर को. उसमें किसी स्टेट का रोल नहीं है, किसी कोर्ट का कोई जिक्र नहीं है इस थेरी में, किसी लीगल बॉडी का कोई जिक्र नहीं है इस थेरी में. जस्ट जो नेचुरल ह्यूमन एग्जिस्टेंस है कि एक इन्वायरमेंट के अंदर रहते हुए किस तरह इंसान ने अपने आप को, अपने लाइफ को सिक्योर रखना है, बेसिकली उस लॉ को नेचुरल लॉ का नाम दिया गया बाय द रोमन्स. Cicero basically was the first author or first intellectual of the Roman Empire who defined human rights as the natural rights. So for the real personal life, equality and universal brotherhood are the two prerequisites. According to Cicero, के equality, that all the human beings are equal, and number two, that there must be a universal brotherhood, that all the human beings must live with peace, with good gestures to other human beings are the prerequisites. Yet these are the two basic conditions, that we must consider everyone equal, and we must treat the other people with the sensibility or with the emotion of brotherhood.
सो नेचुरल लॉ जो कि डिफ़ाइन किया गया रोमन एम्पायर या रोमन रूल की तरफ से, वो आगे चलकर फिर 2000 ईयर्स आफ्टर उसको फॉर्मुलेट किया गया, उसको रिस्ट्रक्चर किया गया इनटू द मिडल एजेस, जो कि अगर आप देखें मैंने ये हाईलाइट किया है आपके पेज नंबर 18 के लास्ट पैराग्राफ में, कि इन द मिडल एजेस नेचुरल लॉ वाज आइडेंटिफाइड विद द लॉ ऑफ गॉड एंड ऑफ द चर्च. Now a new inclusion or new introduction of the God and church in the European societies, कि वो नेचुरल लॉ जो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में इंसान की एग्जिस्टेंस से अटैच किया गया था 17th सेंचुरी के बाद या मिडल एजेस के बाद, उसमें उस नेचुरल लॉ को लॉ ऑफ गॉड के नाम से भी पुकारा गया या लॉ ऑफ चर्च के नाम से भी पुकारा गया. जॉन लॉक एक फ़िलोसोफर था, एक बहुत बड़ा सोशियोलॉजिस्ट था. ही वॉज द फर्स्ट टू रीस्टेट इट इन प्योरली philosophical terms and he made it the सोर्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन. जॉन लॉक का बिलीव ये था कि जो ह्यूमन राइट्स हैं बेसिकली ये वो राइट्स हैं जो कि इंसान की नेचुरल रिक्वायरमेंट्स हैं, एंड दीज राइट्स आर बेसिकली अप्रूव्ड बाय गॉड. यानी ये राइट्स इंसान को किसी इंसान ने नहीं दिए, बल्कि ये राइट्स जो हैं इंसान को गॉड ने प्रोवाइड किए हैं या रिलीजन ने प्रोवाइड किए हैं. सो ये बिलीव था जो कि 17th सेंचुरी में यूरोप में पॉपुलर हुआ, कि नेचर के साथ साथ क्योंकि नेचर का जो क्रिएटर है वो गॉड है, या जो नेचर के बारे में प्रीचिंग है वो हमें चर्च से मिली थी. मैं मतलब यूरोप की बात कर रहा हूँ. अगर हम मुस्लिम बींग्स एज ए मुस्लिम बींग्स बात करें तो हमें वो इस्लाम की प्रीचिंग से मिलती हैं, होली कुरान से मिलती हैं. तो 17th सेंचुरी में जा कर के जो ह्यूमन राइट्स की बेसिक्स थी वो बेसिकली आइडेंटिफाई की गई विद गॉड एंड विद द रिलीजियस फाउंडेशंस. लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम था कि स्टार्ट में जो ह्यूमन राइट्स की जो थेरी है, थेरी ऑफ नेचुरल राइट्स, वो सिर्फ और सिर्फ नेचर को सोर्स मानती थी राइट्स का. लेकिन 17th सेंचुरी में यूरोपियन फिलोसोफर्स ने, जैसा कि जॉन लॉक का जिक्र हुआ है, इन लोगों ने नेचर के साथ साथ रिलीजन को भी उसमें अटैच कर दिया. प्लस जब रिलीजन की बात की गई तो रिलीजन के साथ साथ स्टेट का रोल भी इसमें शामिल हो गया. अगर आप देखिए पेज नंबर 19 पे, द नीड फॉर अ सिविल सोसाइटी वॉज फेल्ट अकॉर्डिंग टू लॉक बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सर्टन इनकन्वीनियंसेस इन द स्टेट ऑफ नेचर, एंड मैन एग्रीड टू ट्रांसफर सम ऑफ द राइट्स इन ऑर्डर टू सेफ गार्ड द रिमेनिंग नेचुरल राइट्स, फॉर एग्जाम्पल लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी. अब नीड ऑफ सिविल सोसाइटी वॉज फेल्ट. इससे पहले जंगल का कानून, आप एक टर्म सुनते हैं ना अक्सर कि जंगल का कानून, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि द माइट इज़ राइट, जो पावरफुल है उसी के पास इख्तियार है, जो पावरफुल है उसी के पास इक़्तिदार है. अब जब हम नेचुरल राइट्स की या नेचर की राइट्स की बात करते थे या नेचर को एज ए सोर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स मानते थे, वहाँ पे एक प्रॉब्लम ये था कि नेचर को डिफ़ाइन कैसे किया जाए, और दूसरा प्रॉब्लम फिर उसमें ये था कि नेचर हर इंसान के, या जैसे दुनिया इतनी वास्ट थी, मोर देन 5 कॉन्टिनेंट्स थे, उस पर लोग आबाद थे, हर जगह की वेदर कंडीशंस डिफरेंट, हर जगह की जो है वो हैबिटेशन कंडीशंस डिफरेंट, हर जगह की फूड उसमें कुछ वेरिएशन. तो फिर राइट्स को इक्वल बनाना, राइट्स को इक्वल करना, ये ह्यूमन बींग्स के लिए बड़ा मुश्किल हो गया. सो स्कॉलर्स ने, इंटेलेक्चुअल्स ने 17th सेंचुरी में ये ज़रूरत महसूस की कि सोसाइटी को सिविल ग्राउंड्स पे इस्टेब्लिश किया जाए, और सिविल सोसाइटी, जिसको हम सिविल सोसाइटी बोलते हैं, उसमें बेसिकली रोल ऑफ स्टेट इंक्लूड हो जाता है कि सोसाइटी को स्टेट गवर्न करे, स्टेट उसको मॉनिटर करे, एक ऐसी कंट्रोलिंग अथॉरिटी हो, कंट्रोलिंग बॉडी हो जो लोगों को ये सिक्योरिटी फ्राहम करे ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी. सो जॉन लॉक के इन जो थॉट्स थे, उसकी जो ये प्रीचिंग्स या टीचिंग्स थी, इसने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया अमेरिकन्स को और फ्रेंच को. हिस्टोरिकली स्पीकिंग, अमेरिका वाज इस्टेब्लिश्ड और रिकग्नाइज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन टू 16th सेंचुरी. आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, हमने हिस्ट्री में देखा है, पढ़ा है कि अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिकन जो राइट्स ऑफ मैन है, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन है, बेसिकली दे वर इंस्पायर्ड बाय दिस theory of human rights which are basically the natural rights, which says कि
we hold these truths to be self evident that all men are created equal. पैराग्राफ नंबर 2 जो पेंसिल से हाईलाइटेड लाइंस हैं मैं उनको पढ़ रहा हूँ. We held these truths to be self-evident that all men are created equal. ये था अमेरिकन स्लोगन, ये था वो डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन जो अमेरिकन ने अपने आइन या अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए डिफाइन किया या डिज़ाइन किया. यही कानून आगे चल के कहता है दैट दे आर इंडोड बाय देयर क्रिएटर विद सर्टन इनएलिएनेबल राइट्स दैट अमंग दीज आर लाइफ, लिबर्टी एंड द परसूट ऑफ happiness. So Americans believe that these rights are basically not given by human beings to other human beings, rather these rights are endowed or gifted by their creator. Or who is our creator? God is our creator. So according to American Constitution, human rights का जो source है basically वो nature है, वो God है. I'm sorry, कि गॉड ने या नेचर ने हमारे लिए लाइफ, लिबर्टी और परसूट ऑफ हैप्पीनेस के पीसफुल लाइफ गुजारने का जो राइट है वो हमारे लिए सिक्योर किया है. तो इसी तरीके से आगे चलकर फ्रेंच रेवोल्यूशन का जिक्र होता है. 18th सेंचुरी में फ्रेंच जो रूल था उसमें बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ थी. एट द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी और एट द बिगनिंग ऑफ द 18th सेंचुरी लोगों ने प्रोटेस्ट किया. फ्रेंच रेवोल्यूशन बड़ी पॉपुलर, बड़ी फेमस है इनटू द रोमांटिक एज ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री, कि जब लोगों ने अपने राइट्स के लिए सड़कों पर एहतजाज किए, उन्होंने गवर्नमेंट से या जो भी उस वक्त की रूलरशिप थी, किंगशिप थी, उसको एज ए मदर स्टेट उनको ये रियलाइज़ कराने की कोशिश की कि लाइफ, लिबर्टी और परसूट ऑफ हैप्पीनेस या सिक्योरिटी की जो कंडीशंस हैं ये ठीक है गॉड ने दी हैं, बट इनको सिक्योर करना, इनकी इंश्योरिटी कराना वो बेसिकली स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो अगर हम देखें कि जो थियरी ऑफ नेचुरल राइट्स है इसने ना सिर्फ रोमन सिविलाइजेशन को इंस्पायर किया इन प्री ग्रीक हिस्ट्री, बल्कि 14th सेंचुरी, 15th सेंचुरी एंड अप टू द 17th सेंचुरी इसने अमेरिकन सिविलाइजेशन को, इसने फ्रेंच सिविलाइजेशन को, या दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए कि यूरोपियन सिविलाइजेशन को इंस्पायर किया. और यही राइट्स जो हैं आगे चल कर के इसमें सोशियोलॉजिकल स्कूल की इंक्लूजन होती है कि सोशियोलॉजिकल स्कूल जो है ड्यूरिंग रिसेंट टाइम्स हैज़ गिवन अ न्यू मीनिंग टू द थियरी ऑफ नेचुरल राइट्स. दे रिजेक्ट completely the notion that natural rights are those which belong to man in primitive societies and that he brought them with him when the state was established. According to sociologists, जो modern belief है वो इस बात को रिजेक्ट करते हैं कि नेचर जैसा कि प्रिमिटिवली समझा जाता था या जैसा कि ओल्ड सोसाइटीज़ में या सिविलाइजेशंस में समझा जाता था कि नेचर ही सोर्स ऑफ सिक्योरिंग ह्यूमन राइट्स है, कि नेचर हमें राइट्स प्रोवाइड करती है और वही हमारे राइट्स की हिफाजत करती है. मॉडर्न सोशियोलॉजिस्ट्स ने इस बिलीफ को रिजेक्ट किया. उन्होंने इस बात पे भी बिलीव किया कि बेसिकली स्टेट जो है, स्टेट का रोल या गवर्नमेंट का रोल जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है राइट्स को रिकॉग्नाइज करने में और राइट्स को प्रिजर्व करने में. सो नेचुरल राइट्स अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर गिडिंग्स आर सोशली नेसेसरी फॉर्म्स ऑफ राइट्स enforced by natural selection of the sphere of social relationships, and in the long run there can be neither legal nor moral rights that are not grounded in natural rights as thus defined. उनके कहने का मतलब ये है कि नेचुरल राइट्स जैसा कि लाइफ, लिबर्टी और हैप्पीनेस या फ्रीडम ये बेसिकली प्रोवाइड तो नेचर करती है, लेकिन इसकी सिक्योरिटी और इसको इन्फोर्स कराना उसमें रोल है स्टेट का, उसमें रोल है सिविल सोसाइटी का. और इसके बगैर जो है वो नेचुरल राइट्स जो हैं जैसे कि प्रिमिटिवली बिलीव किए जाते थे जंगल के कानून की तरह वो एक्सरसाइज नहीं किए जा सकते, क्योंकि उसमें ये होता था कि जिसके पास पावर वो अपनी ज़्यादा राइट्स क्लेम कर लेता था और जो वीक होता था उसके राइट्स जो थे वो डिस्क्रिमिनेट कर दिए जाते थे. सो ये फर्स्ट थेरी थी जो ह्यूमन राइट्स के सोर्स के तौर पे देखी गई, द थेरी ऑफ नेचुरल राइट्स. अब इसी थेरी पे मुख्तलिफ क्रिटिसिज्म भी की गई. राइटर्स ने, क्रिटिक्स ने, स्कॉलर्स ने, इंटेलेक्चुअल्स ने, सोशियोलॉजिस्ट, फिलोसोफर्स ने इस थेरी को कंप्लीट नहीं समझा, उन्होंने इसको फाइनल नहीं माना. उन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिटिसिज्म की, इस थेरी के मुख्तलिफ वीक पॉइंट्स हाईलाइट किए.
फॉर एग्जाम्पल जो पहली क्रिटिसिज्म, जो इस थ्योरी की पहली वीकनेस है, वो है द टर्म नेचुरल, कि जो नेचुरल का वर्ड है ये सही तरीके से डिफाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि नेचर की डेफिनेशन हर सोसाइटी की डिफरेंट है। हर शख्स नेचर को डिफरेंट एंगल से देखता है। कोई गॉड को नेचर मानता है, कोई रिलीजन को नेचर मानता है, कोई ट्रीज, सन, मून और ये जो हमारी इन्वायरमेंट है इसको नेचर मानता है। तो नेचर की जो डेफिनेशन है बेसिकली वो इस थ्योरी में कहीं भी एक्सप्लेन नहीं की गई, या वो कहीं भी क्लियर वर्ड्स में, एक्सप्लिसिट टर्म्स में डिफाइन नहीं की गई। सिमिलरली ये नहीं इस थ्योरी में बताया गया कि ह्यूमन बींग्स की जो टर्मिनोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं उसमें तो मैन भी हैं, उसमें वीमेन भी हैं, यानी मेल हैं, फीमेल हैं। अब नेचुरल राइट्स जो कि कह रहे हैं कि तमाम राइट्स ह्यूमन बींग्स के लिए इक्वल हैं, लेकिन हम देखते हैं, हमने हिस्टोरिकली जब हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि मेल और फीमेल इनकी सोसाइटी में इक्वल स्टैंडिंग्स नहीं रही। मेल को ओल्ड सोसाइटीज़ में भी और इवन आज की मॉडर्न सोसाइटीज़ में भी ज़्यादा पावर्स, ज़्यादा अथॉरिटीज़, ज़्यादा उसको जो है लिबर्टी अवेलेबल है, लेकिन फ़ीमेल के लिए लिमिटेशंस हैं, पाबंदियाँ हैं, या उनके लिए जो है वो उस तरीके की इंडिपेंडेंस नहीं है जिस तरह की इंडिपेंडेंस मेल ऑब्ज़र्व करते हैं या मेल इंजॉय करते हैं। सो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो देर इज़ नो unanimity of opinion even in our times whether men or women are by nature equal। हम कहते तो हैं, हम क्लेम तो करते हैं that men and women are equal, लेकिन जो social practices हैं, जो हमारी natural existence है या natural practices हैं, वहाँ पर men और women equal हमें नज़र नहीं आते। women जो हैं historically speaking, physically speaking, उनको weak consider किया गया है, उनको आज भी weak consider किया जाता है। तो इस वजह से जो इस थ्योरी का ओपिनियन है या इस थ्योरी की जो फाउंडेशन है कि सब इंसान इक्वल हैं, वो बेसिकली रॉन्ग साबित होता है कि सब इंसान इक्वल नहीं हैं। कि हालांकि होना ऐसा ही चाहिए कि सब इंसान इक्वल माने जाएं, बट हमारी जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है, जो मेल फीमेल डिस्क्रिमिनेशन है, उसमें फ़ीमेल के साथ जो है वो कई मरतबा ज़्यादती होती है, उनके साथ कई मरतबा ह्यूमन राइट्स की प्रोविज़न में उनको वो राइट्स प्रोवाइड नहीं किए जाते जो बेसिकली मेल इंजॉय कर रहे होते हैं। Then rights cannot be independent of society and unless they are recognized and upheld by the state there is no substance in them। यानी सेकंड क्रिटिसिज्म ये की गई कि सिर्फ नेचर को सोर्स मान लेना, सिर्फ नेचर से राइट्स को डिराइव कर लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि उसके लिए हमें जो है सोसाइटी चाहिए, एक कम्युनिटी की शक्ल चाहिए, और उसके लिए स्टेट का रोल भी चाहिए कि जब तक लोग सोसाइटी की शक्ल में नहीं रहते, जब तक उनको कोई स्टेट या कोई गवर्नमेंट गवर्न नहीं करती, तब तक राइट्स जो नेचुरल राइट्स हैं वो एक्सरसाइज या वो जो है इंश्योर नहीं कराए जा सकते। फिर हमारे पास है कि कंप्लीट फ्रीडम फॉर एवरीवन इज़ अ पॉलिटिकल इम्पॉसिबिलिटी। ये भी एक हकीकत है कि हर इंसान को, जैसा कि नेचर तो ये कहती है कि सब इंसान बराबर पैदा किए गए हैं, सबको बराबरी के राइट्स हासिल हैं, बट ये बात हम पॉलिटिकली अगर हम बात करें तो पॉलिटिकली स्पीकिंग ये चीज़ बड़ा इम्पॉसिबल हो जाती है सबको इक्वल राइट्स दे देना। फॉर एग्जांपल लिबर्टी की हम बात करते हैं कि लिबर्टी एक नेचुरल राइट है, हर इंसान को आज़ाद रहने का हक हासिल है, बट पॉलिटिकली स्पीकिंग और सोशली स्पीकिंग कि कोई शख्स अगर कोई जुर्म करता है, कोई वो क्राइम कमिट करता है, क्या हम उसको आज़ादी से घूमने फिरने की इजाज़त दे सकते हैं? क्या बंदा एक किसी का कत्ल करके और वो माशरे में आज़ाद घूमता फिरता रहे, जैसा कि उसको नेचर लिबर्टी फ्राहम करती है या ये अथॉरिटी फ्राहम करती है, तो क्या वो सोसाइटी के लिए सिक्योर होगा, पीसफुल होगा? नहीं होगा। तो इस वजह से इस थ्योरी पे ये क्रिटिसिज्म की गई कि नेचर को टोटल सोर्स मान लेना और नेचुरल लॉ को टोटल सोर्स मान लेना वो सोसाइटी के लिए डेंजरस साबित हो सकता है। हालांकि लिबर्टी हर एक इंसान का हक है क्योंकि सब इंसान इक्वल पैदा किए गए हैं, लेकिन पॉलिटिकली स्पीकिंग ये बड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है कि किसी क्रिमिनल को या किसी इवन पागल शख्स को, मैड शख्स को जो दूसरे लोगों के लिए डेंजरस हो, उसको हम लिबर्टी एक्सरसाइज करने दें, उसको आज़ादी के साथ घूमने फिरने दें। तो ऐसा नहीं किया जा सकता। दैट इज़ वाई हम उनको फिर कैप्चर करते हैं, इम्प्रिजन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो सोसाइटी के लिए डेंजरस होते हैं या सोसाइटी के लिए डेंजरस हो सकते हैं। और फिर इस थ्योरी के बारे में एक और क्रिटिसिज्म भी की गई, और वो क्रिटिसिज्म ये थी कि देयर कैन बी नो इनहेरेंट नेचुरल राइट्स दैट आर एब्सोल्यूट अंडर ऑल कंडीशंस। इंसान की दौर के वक्त के साथ साथ, बदलते तकाज़ों के साथ साथ राइट्स की सिचुएशन भी चेंज होती रही है। ह्यूमन राइट्स हिस्ट्री में कुछ और थे, लेकिन जैसे जैसे हमने प्रोग्रेस
किया है, जैसे जैसे कम्युनिटीज़ ने डेवलपमेंट की है वो राइट्स जो हैं वो चेंज भी होते रहे हैं। मिसाल के तौर पे पहले रिवेंज लेने का, इंतकाम लेने का राइट एक नेचुरल राइट समझा जाता था कि अगर आपके किसी अजीज़ प्यारे को कोई नुकसान पहुंचाता है तो आपको उससे बदला लेने का पूरा पूरा राइट खुद हासिल था। बट मॉडर्न सोसाइटी में ये काम स्टेट करती है, ये काम इंसान के इख्तियार से वापस ले लिया गया है। इसी तरीके से स्लेव बनाने का या ग़ुलाम रखने का रिवाज हुआ करता था पुरानी सोसाइटीज़ में, जो कि नेचुरल राइट के तौर पे कंसिडर किया जाता था, लेकिन मॉडर्न सोसाइटी में उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया है। और बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़, बहुत ज़्यादा स्टेट्स अपने पास रखना हिस्टोरिकली स्पीकिंग ये बड़ा कन्वीनियंट था। लेकिन मॉडर्न कम्युनिटीज़ या मॉडर्न कंट्रीज़ जैसे कि रशिया की एग्जांपल है, चाइना की एग्जांपल है, वो ये बेसिक ह्यूमन राइट लोगों को प्रोवाइड नहीं करते कि वो अपनी मर्ज़ी से जितनी मर्ज़ी चाहे स्टेट या प्रॉपर्टी ओन कर सकें। सो वक्त गुजरने के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे कि कंडीशंस चेंज होती रहती हैं तो ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन भी चेंज होती रहती है। तो इस वजह से इस थेरी में ये फ्लॉ पाया गया, ये वीकनेस पाई गई कि ये इस थेरी को यूनिवर्सल नहीं माना जा सकता। नेक्स्ट ये है कि इसी थेरी की बेसिस पे एक बात तो कंसीडर कर ली गई, मान ली गई कि यस नेचर बेसिकली इंसान की जो नेचर है कि उसको इस यूनिवर्स में भेजा गया है, पैदा किया गया है, उसके कुछ राइट्स ऑफ लाइफ, ऑफ लिबर्टी एंड ऑफ इंडिपेंडेंस वो बेसिकली सिक्योर किए गए हैं। और द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जो कि हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के टॉपिक में नेक्स्ट जब हम अपने लेक्चर्स को देखेंगे, उसमें इन राइट्स को, जो बेसिक ह्यूमन राइट्स को इतना ज़्यादा वैल्यू या वेटेज दी गई है कि उसका 5 टाइम्स उसमें मेंशन है। लेकिन उसके बावजूद ये राइट्स जो हैं यूनिवर्सल नहीं हैं, बिकॉज डिफरेंट स्टेट्स, जैसे कि हमने जिक्र किया है रशिया का, और जैसे कि हमने जिक्र किया है अमेरिकन का, और इवन हमारे पाकिस्तान की भी इसमें मिसाल दी गई है कि बहुत मरतबा ऐसा हुआ है कि इन नेचुरल राइट्स को डिनाई किया गया है, स्टेट्स इनको डिसऑन करती हैं, वो उनको उस तरीके से एक्सरसाइज नहीं करती जिस तरीके से होना चाहिए। रशिया जो है वो अपने लोगों को वो लिबर्टी नहीं देता जो बाकी कंट्रीज़ जो कि यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा हैं वो प्रोवाइड करते हैं। सिमिलरली अमेरिकन्स जो हैं वो ब्रिटेन की जो क्लास सिस्टम है, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, जो क्लास सिस्टम है उसको वो एज ए डिस्क्रिमिनेशन कंसीडर करता है। और ब्रिटिश लोग जो है ना वो अमेरिकन के जो बिहेवियर हैं विद द ब्लैक पीपल, जैसे कि आजकल भी रिसेंटली एक ब्लैक मूवमेंट चल रही है जॉर्ज फ्लॉयड के बारे में, हम उसको नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो डिफरेंट कंट्रीज़, हालांकि मोर देन 200 कंट्रीज़ हैव साइंड ऑन टू द डिक्लेरेशन ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स, जो यूनाइटेड नेशन की डिक्लेरेशन है उस पर साइन किया है, लेकिन फिर भी हर कंट्री के ह्यूमन राइट्स जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं या उसमें क्लैश आता रहता है। तो इस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि जो थ्योरी ऑफ ह्यूमन राइट्स है विच इज़ बेस्ड ऑन टू द नेचर, जिसको हम थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स कह रहे हैं, वो यूनिवर्सल नहीं थी, कंप्लीट नहीं थी। और चूंकि वो कंप्लीट नहीं थी इसीलिए उसके बाद फिर डिफरेंट अदर थ्योरीज प्रेजेंट की गई, जिसमें जैसे दूसरी जो है सेकंड थ्योरी जो है दैट इज़ द थ्योरी ऑफ लीगल राइट्स या लीगल थ्योरी ऑफ राइट्स है। हम इसके बारे में भी जिक्र करेंगे।